Good morning, all the officers. I am on. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. A Specific Relief Act 1963 is a very important act, and it is very short act, but it is technical. Have you any problem regarding a Specific Relief Act while conducting any cases relating to contract matters? Let me know your experience about cases relating to a Specific Relief Act. Good morning, sir. स्पेसिफिक है आएगा क्या? कोई कंपनी से रिलेटेड अगर कोई कहता है कि हम किस कंपनी में हैं और कंपनी ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो पहले वो हमसे था कि आप रिप्रेजेंट को कहाँ जाना है, तो वो कानपुर से बिलोंग था, तो उसने कानपुर के लिए रिप्रेजेंट, बट कानपुर उसको नहीं और फिर उसको रख दिया शहर में ही, और ड्यूरिंग कोरोना पीरियड उसको बेंगलुरु भेज दिया. हाँ, तो in nutshell you mean to say that a transfer order on any ground has been challenged before the civil court. Is it true? In your case, transfer order has been challenged. ट्रांसफर ऑर्डर को ही चैलेंज किया है ना सिविल कोर्ट में. आप जो कीर्ति जी पूछ रही हैं जी जी वो ट्रांसफर ऑर्डर के बारे में है ना. सूट में रिलीफ क्या है? डिक्रेटरी रिलीफ है कि ट्रांसफर ऑर्डर को कुछ दे नहीं रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, उसका एसएमएस वगैरह सब ब्लॉक कर दिया नहीं. है. वो आप ऐसा मैटर आपके यहाँ सूट में है कि आप अभी ओपिनियन सीख कर रही हैं कि उसमें क्या कर रहे हैं? टाइप ऑफ सूट इज पेंडिंग इन और माय कोर्ट. सूट आपके यहाँ पेंडिंग है तो उसमें रिलीफ क्या है ये बताइए. रिलीफ है कि सर वो कहता है कि इसको कैंसिल करते हुए हमको फिर से वो अकॉर्डिंग टू मी हमको बहाल करे, हमको सारी ठीक है. फैसिलिटीज वगैरह जो पहला रिलीफ है कि ट्रांसफर ऑर्डर को क्वेश कर दिया जाए या सेट असाइड कर दिया जाए. यही है ना. ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसफर ऑर्डर इलीगल है, वॉइड है, इसलिए इसको क्वेश किया जाए. डिक्लेरेशन भी मांगा है जी. नहीं, रिलीफ में डिक्लेरेशन भी मांगा है कि ट्रांसफर और इट मे बी डिक्लेयर्ड दैट ट्रांसफर ऑर्डर इज वॉइड, इलीगल, विदाउट जुडिक्शन ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड व्हाटसोएवर. जी ये डिक्लेरेशन जो होता है, जितना भी डिक्लेरेटरी सूट होता है उसका तो सेक्शन 9 सीपीसी में आता है. आप सभी जानते हैं कि ऑल सिविल केसेस relating to the civil rights includes right, title, interest and possession, as well as civil liberties and right to office. All suits are of civil nature which are cognizable by civil code, and section 9 prescribes a wider forum for entertaining all those suits by civil code. But civil code has got plenary and expansive jurisdiction. In some matters, the powers which have been given to civil courts are not available to High Court and Supreme Court. In the situation of hierarchy, since subordinate court means subordinate judiciary is subordinate to higher judiciary means district court, and the entire judiciary is subordinate to High Court and High Court is subordinate to Supreme Court.
only because of the fact that in the legal hierarchy, superior, they are actually not subordinate, but they are superior courts. Lower judiciary is subordinate, no doubt, but High Court is not subordinate to Supreme Court. Supreme Court is a superior court and High Court is an inferior court. But in some matters, in criminal matters and civil matters, while the Supreme Court exercises jurisdiction, it exercises jurisdiction as a appellate court. Apart from the provisions included in the CPC and CRPC, Supreme Court exercises appellate jurisdiction. For that there is a separate act. In civil matters, enlargement of appellate jurisdiction of Supreme Court Act, there is another act. So your question is that whether such suit will come under the category of a suit for a specific relief. Certainly it will come, because all declarations, all declaratory suits have to be decided on the principles of a specific relief act. This name is very significant. इसका जो नाम है स्पेसिफिक रिलीफ, इसका मतलब है कि खास रिलीफ के लिए सूट लाया गया है. तो खास रिलीफ क्या है? तो जनरली हम लोग समझते हैं कि जब कोई दो व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो सूट आता है वही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उस सूट वो भी अलग से कोई रजिस्टर नहीं होता है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके कोई सूट रजिस्टर नहीं होता है अकॉर्डिंग टू सिविल कोर्ट रूल्स. वो टाइटल सूट ही रजिस्टर होता है. इवन अगर जैसा आपका रिलीफ है, आप किसी डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करने के लिए भी सूट आपके यहाँ आ सकता है कि इस डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर कर दिया जाए कि वॉइड है, या इस डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर कर दिया सेट असाइड कर दिया जाए. रीजंस कुछ भी हो सकता है. तो अगर वैसा है तो वो भी रिलीफ मिलेगा तो स्पेसिफिक रिलीफ के अंतर्गत ही मिलता है. तो प्रोसीजर कोर्ट को जुरिडिक्शन देता है, कोर्ट को जुरिडिक्शन देता है, सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन वेस्ट किया गया है जिस एक्ट के तहत सिविल कोर्ट कंस्टिट्यूट हुआ. वो कंस्टिट्यूशन हुआ सिविल कोर्ट का बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट 1887. उस एक्ट को शॉर्ट में सिविल कोर्ट एक्ट भी बोलते हैं. लेकिन सिविल सूट्स का निपटारा करने के लिए जो प्रक्रिया प्रावधान बनाया गया वो सब सीपीसी में मिलेगा. और सीपीसी में सिविल सूट किसको कहेंगे, इसके लिए सेक्शन 9 बनाया गया. और सेक्शन 9 ये कहता है कि सभी सूट सिविल कोर्ट में होगा जिसको कि सीपीसी या कोई दूसरे कानून से बार्ड कर दिया गया हो, यानी कि जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट हैज बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली आउस्टेड. यस सर. तो उसमें जो अपोजिट साइड से हैं, हाँ. उन्होंने आकर के बोला कि ये सूट मेंटेनेबल यहाँ नहीं है क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड है और कंपनी एक्ट अलग उसका ये है एक्ट है, तो वो उसका उनको उसमें जाना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो गलत उन्होंने कहा है. कंपनीज एक्ट में मास्टर एंड सर्वेंट के बारे में डिस्प्यूट अगर होगा तो वो उसमें डिसाइड नहीं हुआ. लेकिन वो दूसरा एक मैटर है कि अगर इम्प्लाई जो है वो लेबर के डिफिनेशन में आता है तो लेबर लॉ के अंदर वो उसके लिए लेबर कोर्ट अलग बना हुआ है, वहां पर अपना ट्रांसफर को चैलेंज कर सकता है. लेकिन उसके पास दोनों फॉरम है. अगर वो उसका सिविल राइट्स का वायलेशन होता है, उसका राइट टू ऑफिस है. इसी ने कहा कि या तो राइट टाइटल इंटरेस्ट हो, पजेशन हो. पजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ द राइट्स अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी. इसके लिए सिविल कोर्ट सभी मुकदमा आता है. इतना एक्सपीरियंस तो आप लोग को सब लोग को हो गया है.
तब जब सिविल राइट्स की बात करते हैं तो सिविल राइट्स के अंदर ये भी आता है राइट टू सर्विस। अगर हम सर्विस करते हैं तब इस डिग्निटी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा एम्प्लॉयर है जब चाहे हमको जहां से उठा के फेंक दे, क्योंकि उसका भी हर कंपनी का, हर इंस्टीट्यूशंस का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, जहां पर कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशन है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेशन या रिक्रूटमेंट रूल्स या उसके लिए अलग एक्ट बना हुआ है। जैसे आप लोग जुडिशियल ऑफिसर है तो आप लोग का सर्विस रेगुलेट करने के लिए एक्ट बना हुआ है, रूल्स भी फ्रेम किया हुआ है। अगर आपका ट्रांसफर उसके वायलेशन में होगा तो आप भी अपने ट्रांसफर को चैलेंज कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो पहले जितना भी सर्विस लॉ से संबंधित था, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशन का, सब सिविल सूट में ही होता था चैलेंज। लेकिन बाद में कुछ एक्ट्स बनते गया, उसमें सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड कर दिया। जैसे हम लोग पहले 70 के दशक में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का और स्कूल के टीचर्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिमोशन, सस्पेंशन, डिसमिसल, सब का चैलेंज करते थे सिविल कोर्ट में। अलग अलग एक्ट बनते गया, उसमें प्रावधान बनते गया। यूनिवर्सिटीज एक्ट बन गया तो यूनिवर्सिटीज एक्ट में सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड कर दिया गया, एक सेक्शन उसमें ऐड कर दिया गया। एजुकेशन के संबंधित जब एक्ट कहना था कि इनको रीट में जाना चाहिए, नहीं, वो या तो रीट में जाए या कंपनी में। नहीं, कंपनी में तो होगा नहीं, अगर होगा भी कंपनी का ही मैटर नहीं है। कंपनी का मैटर है, उसके लिए कंपनी में कंपनी कोर्ट बोलते हैं। कंपनी कोर्ट का सबसे लोएस्ट लैडर है, वो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है। तो उसके यहाँ जो मिनिस्ट्रियल वर्क होता है, इनिशियल वर्क होता है, लॉ का जो होता है, तो कंपनी लॉ बोर्ड होता है। और कंपनी लॉ बोर्ड के अलावे हाई कोर्ट के जजेस को पावर दिया गया है, वो कंपनी जज कहलाते हैं। तो वो अलग मैटर है, वो कंपनी से संबंधित कि कोई डायरेक्टर को रिमूव कर दिया, कोई रिजोल्यूशन गलत कर दिया, प्रॉपर्टी बेच दिया, बहुत तरह का मामला है कंपनीज एक्ट में, वो होता है। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि सिविल कोर्ट का अगर जुडिक्शन बार्ड नहीं है और प्लेंटिफ को सिविल कोर्ट के अलावे किसी भी फोरम में अवेलेबल है, फॉरम अवेलेबल है जाने का, तो उसका ऑप्शन है, इसको बोलते हैं इलेक्शन। चॉइस ऑफ इलेक्शन इज अवेलेबल टू एवरी लिटिगेंट। आप उसको ये नहीं कह सकते, ये सिर्फ हाई कोर्ट के लिए है। हाई कोर्ट का रिट जुडिक्शन जो होता है 226 में, वो ओरिजिनल जुडिक्शन है और वो उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुडिक्शन है। ओरिजिनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुडिक्शन है, वो रिट में किसी भी तरह का डायरेक्शन हाई कोर्ट दे सकता है और कंसीडर कर सकता है। तो हर तरह का डिस्प्यूट जो सिविल कोर्ट में होगा उसको भी